Assalamu alaikum students. Hope you will be fine with good health. Now the lecture number 29 and 23 are going to start. That is connected with the week number 15. Before start the lecture number 29 and 23, first we will look toward the overview of the previous lecture. In previous lecture we have seen some important topic related from the double integral over a rectangular region. Rectangular region is such type of a region in which a limit is defined in the form of a function. Now not only we have discussed the definition of a double integral over the non-rectangular region, but also try to solve some questions related from the given topic. Now we will come to the learning objective of the current lecture. In the current lecture we also going to learn some important topics that are very applicable in different fields, not only in mathematics. These definitions are also useful in physical sciences. Now the first topic of the current lecture is area. Area calculated as a double integral. Here we will learn how we will find the formula of the area with the help of a double integral. Secondly, double integral also we will see the same properties as we have learned in the previous lecture or a current lecture. We will convert it. We will see the formula of the double integral in the form of a polar coordinate. As we know that here we will introduce a relation between the Cartesian and spherical Cartesian and polar coordinate. Again, I will overview. In the previous lecture we have discussed double integral over a non-rectangular region, or in the current lecture our main focus is to the formula of the area, how we will calculate the area with the help of a definition of double integral. Secondly, we will see the definition of double integral in the form of the polar coordinate, and here we will introduce a polar coordinate in the form of a r and theta. Again, the book which we are following, the Calculus, 10th edition by Howard Anton. Now we are starting the first topic of the current lecture. First topic of the current lecture is the area calculated as a double integral. अच्छा बेटा, ये सबसे पहले क्या है कि हम लोगों ने एरिया कैलकुलेट करना है एज अ डबल इंटेग्रल, और एरिया को कैलकुलेट करने से के लिए आपको पहले से मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंफॉर्मेशन दी है कि जो डबल इंटेग्रल है वो बेसिकली आपको वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन देता है, और सिंगल इंटेग्रल जो है वो आपको एरिया की इंफॉर्मेशन देता है। तो हमारा पर्पस ये होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह कि एरिया का जो फार्मूला है वो बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमें यह पता चला कि वॉल्यूम अगर आपने किसी भी कैलकुलेट करना है, किसी भी रीजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो उसके ऊपर डबल इंटेग्रल अप्लाई कर दें और फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा। ये 2 डायमेंशनल फंक्शन एक्स और वाई की फॉर्म में, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ रीजन। लेकिन यहाँ पे जो है विद द हेल्प ऑफ डबल इंटेग्रल ओवर रीजन आर विद एफ इज अ कॉन्टिन्यूस और नॉन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, जिसमें एफ क्या चीज होना चाहिए, एफ कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस से मुराद है कि इसकी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों पॉसिबल हो, और डबल इंटीग्रेशन से मुराद है कि एक दफा इंटीग्रेशन एक्स के साथ, दूसरी दफा इंटीग्रेशन वाई के साथ होनी चाहिए। तो ये डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर ऑफ द कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिव्स यू अ वॉल्यूम ऑफ द रीजन। नाउ हमारा लेकिन यहाँ पे अब जो पर्पस है कि हम एरिया कैलकुलेट करने लगे हैं एज अ डबल इंटेग्रल। तो डबल इंटेग्रल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक कुछ छोटी सी थ्योरी जो है वो मैंने मेंशन की है, उसको देख लेते हैं कि although double integral arose in the context of calculating volume, वो कहता है कि जैसा कि हमें पता है कि जो डबल इंटेग्रल है उसका ताल्लुक तो वॉल्यूम से, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड।
दे कैन ऑल्सो बी यूज टू कैलकुलेट द एरिया। वो कहता है कि ना सिर्फ ये वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है, बल्कि इस डबल इंटीग्रल को आप एरिया कैलकुलेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। टू सी वाई दिस इज सो, वो कहता है कि आखिर ये क्यों ये मतलब जो है इस तरह की कंडीशन को टैकल करता है। आखिर जब एक फार्मूला हमें पता है कि वो वॉल्यूम के लिए होल्ड कर रहा है तो वो एरिया के लिए किस तरह होल्ड करेगा, तो इस चीज को देखते हैं। उसके लिए जो है हमारे पास उसने एक एग्जांपल ली है, प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है ये बेसिकली जो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। वो कहता है रिकॉल दैट अ राइट सिलेंडर। वो कहता है कि बेसिकली एक सिलेंडर है, एक राइट सिलेंडर है इन अ सॉलिड फॉर्म के अंदर है, डेट इज जनरेटेड व्हेन अ प्लेन रीजन इज ट्रांसलेटेड along a line that is perpendicular to the region। वो कह रहा है कि बेसिकली एक सॉलिड है, एक सिलेंडर है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, जो किसी प्लेन के ऊपर मौजूद है। और वो प्लेन क्या कर रहा है, प्लेन से मुराद है एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है, इसके ऊपर कोई ना कोई सिलेंडर पड़ा हुआ है वो। और ये प्लेन क्या कर रहा है, ट्रांसलेट करता है अलोंग अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रीजन। और वो क्या कर रहा है, ये ट्रांसलेट कर रहा है। ट्रांसलेट से मुराद ये है कि इसके ऊपर सिलेंडर पड़ा है और ये अपनी पोजीशन को छोड़ के किसी और पोजीशन के ऊपर जा रहा है, यानी अपनी जगह को छोड़ के ये प्लेन सपोज करते हैं यहाँ से लेके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ से लेके यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएगा। ट्रांसलेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। वो कहता है कि when the plane region is translated along a line, एक लाइन में ट्रांसलेट हो, यानी एक लाइन में ट्रांसलेट हो, और वो लाइन किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लाइन डेट इज परपेंडिकुलर टू द रीजन, जो इस रीजन के परपेंडिकुलर हो। वो कह रहे हैं इन वो प्रीवियस सेक्शन के अंदर फार्मूला 2 है, वो हम ये फार्मूला हमारे पास मेंशन है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सिलेंडर जो है वो बेसिकली इसकी इक्वल है। वॉल्यूम आपने किसी सिलेंडर का निकालना हो तो उसका फार्मूला ये होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके पास एक सिलेंडर है, रेक्टेंगुलर सिलेंडर। ये मैं आपके सामने एक रेक्टेंगुलर सिलेंडर जो है वो बनाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको एक रेक्टेंगुलर सिलेंडर जो है वो नजर आ रहा होगा। ये बेसिकली मैंने एक रेक्टेंगुलर, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। और ये आपको एक सिलेंडर नजर आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली आपको सिलेंडर है, ठीक है। और जिसमें ये वाला जो हिस्सा है ना, जो नीचे आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये एरिया के इक्वल है, ठीक है। और ये जो उसकी आपको हाइट नजर आ रही है। तो अगर आपने इस सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ दिस राइट सिलेंडर का कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वॉल्यूम का असल फार्मूला है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, लेंथ को अगर आपने एल का नाम दिया, क्रॉस विड्थ क्रॉस, ये बेसिकली लेंथ इनटू विड्थ और इनटू हाइट। और हाइट को आपने, अब लेंथ और विड्थ को जब आपस में कंबाइन करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। बेटा ये लेंथ है, ये आपको देख सकते हैं, मैं इसका कलर चेंज करके आपको बताता हूं ताकि आपको ज्यादा आइडिया हो सके। यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ होगी। लेंथ और विड्थ जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा, और एरिया को जब आप हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया है। नाउ सपोज दैट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ द रीजन। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वॉल्यूम को वो किससे कंपेयर कर लिया, वॉल्यूम और एरिया का जो आपस में रिलेशन है वो निकाल लिया कि वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर दिया इन द टर्म ऑफ एरिया। अब मैं अगर आपको कहूं कि यहां से एरिया निकालना, तो एरिया निकालना बहुत आसान है। अगर आप इसकी जो हाइट है, अगर आपने इसका एरिया निकालना है एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो बेटा याद रखना बहुत आसान है। एरिया निकालने के लिए जो आप इसकी हाइट है वो यूनिट हाइट ले लें। अगर हाइट को आप 1 ले लें, हाइट को आप 1 ले लें तो आपके पास जो एरिया आ जाएगा
वो आपके पास बेसिकली एरिया आसानी के साथ आ जाएगा। दोबारा सुन लें कि यहाँ पे एक डिटेल नोड लिखा गया है, उस नोड में आपके मुताबिक आपने जो इसकी हाइट मुकर्रर करनी है, आपने जो इसकी हाइट लेनी है वो यूनिट हाइट लेनी है। यूनिट कहते हैं कि 1 यूनिट हाइट का मतलब होता है 1 हाइट ले लें। जब आप इसका 1 हाइट ले लेंगे तो यहाँ पे ये वॉल्यूम की जगह आप फार्मूला पुट करेंगे A.H, और h जब 1 होगा तो आपको पास ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ a आएगा, तो एरिया जो है आसानी के साथ यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत इन चीज़ों का आइडिया हो जाए, तो फिर हम इसको आगे जो है आसानी के साथ कैरी कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे अभी फार्मूला भी जो इसका ड्राइव करके आपको बताना है, तो मैं ये सारी चीज़ों को सामने आपके दोबारा मेंशन करता हूँ। इसको यहाँ पे मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखा। वो कहते हैं नाउ सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ द रीजन आर इन द एक्स वाई प्लेन। वो कहता है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हम एरिया निकालना चाहते हैं किसी रीजन आर का एक्स वाई प्लेन में। इफ यू ट्रांसलेट रीजन आर अपवर्ड यूनिट, वो कह रहा है कि ये बेसिकली ये आपको नजर आ रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम इसको ट्रांसलेट करें, जिस तरह मैंने आपके सामने ये एक सिलेंडर की फिगर आपको नजर आ रही होगी, गौर से देखिएगा, ये आपको एक सिलेंडर जो है ये नजर आ रहा है। ये बेसिकली एक सिलेंडर जो है वो बेसिकली 3 डायमेंशन में आपको प्लॉट होता हुआ नजर आ रहा है, और जिसका ये वाला जो रीजन है वो बेसिकली एक्स वाई प्लेन के अंदर है, ये सिलेंडर है। और इसको आपने क्या करना है, ये जो नीचे वाला रीजन है इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। जब आप इसको खींच के ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे यूनिट जो है ना z की वैल्यू आपने 1 लेनी है, तो आपके पास ये एक प्लेन जनरेट हो जाएगा। ये जो प्लेन है इसमें z, इस प्लेन का नाम z होगा और वो विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप z को 1 ले लें